गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं हर एक वीडियो में। 2004 से लेकर के अब तक जितने भी 2025 तक के पीवाईक्यूज आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो सारे के सारे हम इस सीरीज में करने वाले हैं। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग की भी सीरीज कर रहे हैं, तो आप उसको प्ले लिस्ट से जा करके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें। तो ये हमारे 10 मोर क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते हैं हमारे 10 क्वेश्चन कौन से हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the essence of an effective classroom environment is a variety of teaching aids, lively student-teacher interaction, pin drop silence, strict discipline. So the right answer for this is lively student-teacher interaction. Next question is, those teachers are popular among students who develop intimacy with them, help them solve their problems, award good grades, take classes on extra tuition fee. So only those teachers are popular among students who help them to solve their problems. An effective teaching aid is one in which is colorful and good looking, activates all faculties, is visible to all students and useful, is easy to prepare. So we have to think on it. Right answer for this question will be activates all faculty. So activates all faculty is the right answer for this question. Why activates all faculty is the right answer for this question? As we know, बिकॉज अगर हम देखें ऑल फैकल्टीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी में फैकल्टीज़ जो होती हैं उसका मतलब होता है सेंसरी फैकल्टीज़। जैसे कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या टच कर सकते हैं, या बोले अगर सेंसरी तो में तो सिर्फ वो आएंगी जिसमें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं। फिर एक होती है कग्निटिव फैकल्टीज़, जिसमें हम थिंक करते हैं, रीजनिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं। देन देर इज़ वन मोर साइकोमोटर इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हम कुछ करते हैं, डूइंग, हैंडलिंग, या जहाँ भी ये एप्लीकेबल हो। तो एंड एट दैट एक्टिवेट्स मल्टीपल फैकल्टीज, प्रमोट्स मल्टी सेंसरी लर्निंग, इट इम्प्रूव्स अटेंशन, रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। सो इट आल्सो encourages एक्टिव rather than passive learning. So an effective teaching aid will be which activates all faculties. फैकल्टीज का मतलब यहाँ पे टीचर्स नहीं, फैकल्टीज का मतलब यहाँ पर है जो हमारी एजुकेशनल फैकल्टीज़ होती हैं, जैसे कि हमारी सेंसरी फैकल्टीज़ हो गई, कग्निटिव फैकल्टीज़ या साइकोमोटर इन्वॉल्वमेंट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट essential फॉर ए टीचर? ही शुड बी ए लर्नेड पर्सन, he should be a well dressed person, he should have patience, he should be an expert of his subject. तो इसमें मोस्ट essential quality of a teacher should be he should be an expert of his subject as well as he should have patience. तो इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। One of the first day of his class, if a teacher is asked by the student to introduce himself, he should ask them to meet after the class, tell them about himself in brief, ignore the demand and start teaching, scold the student for his unwanted demand. So the right option is for this, uh, tell them about himself in brief. Some students in a class exhibits great curiosity for learning. It may be because such children are gifted, come from rich families, show artificial behavior, create indiscipline in the classroom. तो जो स्टूडेंट जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी दिखाते हैं लर्निंग को लेकर के क्लासरूम में, वो स्टूडेंट्स गिफ्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि वो रिच फैमिली से हो या पुअर फैमिली से, या कोई आर्टिफिशियल बिहेवियर हो उनका, या किसी तरह का इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो क्लास में, तो दे आर बेसिकली गिफ्टेड. For maintaining an effective discipline in the class, the teacher should allow students to do what they like, deal with the students strictly, give the students some problem to solve, deal with them politely and firmly. So the right answer for this question is give students some problem to solve, so that they can learn few new things, or they can have a good practice. Next question is, which of the following belongs to a projected aid? Blackboard, diorama, एपी डायस्कोप, ग्लोब. तो इसका जो राइट आंसर है वो एपी डायास्कोप.
तो इसमें जो प्रोजेक्टेड एड्स होती हैं, जितनी भी प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स होती हैं, दे रिक्वायर ए प्रोजेक्शन सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं कि एक जिसमें हमें लाइट की या डिस्प्ले की ज़रूरत पड़े, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड सिस्टम। ए टीचिंग एड दैट रिक्वायर्स ए प्रोजेक्शन सिस्टम लाइट सोर्स टू डिस्प्ले मटेरियल ऑन स्क्रीन और ए वॉल। सो एन डायस्कोप, जैसा कि हम जानते हैं, इज एन ऑप्टिकल प्रोजेक्शन डिवाइस यूज टू प्रोजेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कि पिक्चर हो गई, मैप्स हो गए और टेक्स्ट हो गए, ऑन टू ए स्क्रीन। सो इट क्लियरली फॉल्स अंडर प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स। Next question: moral values can be effectively inculcated among students when the teacher frequently talks about values, himself practices them, tells stories of great persons, टॉक्स ऑफ गॉड्स एंड गॉड्सेस। तो इसमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कैसे इफेक्टिवली इनकलकेट की जाती हैं स्टूडेंट में। वैसे तो सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सही हैं, बट जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस देम। जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स सीखेंगे। Last question of this video is: a teacher is said to be fluent in asking questions if he can ask meaningful questions, as many questions as possible, maximum number of questions in a fixed time, many meaningful questions in a fixed time. So the right answer for this question is meaningful question. सो गाइस, थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप 4 यूनिट्स के अलावा नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कौन सी यूनिट के PYQs देखना पसंद करेंगे। अभी तो हम कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे हैं, और इनमें से कोई एक जो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम 1 या 2 और नई यूनिट लेकर के आएंगे आपके लिए। तो आप प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी 2026 में। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।